ہم یہ چھوٹا سا گرامر کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ عربک گرامر کو بہترین انداز میں سیکھیں گے اور بآسانی قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج کا لیکچر ہم بہت ہی آسان سٹیپ سے شروع کریں گے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر ہم چلتے چلے جائیں گے اور بہترین کامیابی کی طرف قرآن کو سمجھنے کے لیے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیسن میں ہم بیسکلی 6 الفاظ سیکھیں گے، گرامر کے بیسک الفاظ۔ وہ 6 الفاظ ہمارے پاس لوگوں کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے ہوا۔ ہوا ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہی۔ میل کے لیے ہوا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہم۔ ہم کہتے ہیں وہ سب کو، وہ سب، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دے۔ ہوا ہم، پہلا، دوسرا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اندا۔ انتا، انتا کہتے ہیں آپ کو، آپ یا تم، دونوں میں سے جو بھی لفظ آپ سینٹینس میں یوز کریں گے اس کی عربی انتا ہی آئے گی۔ جیسے انگلش میں ہمارے پاس دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے، یو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انتم۔ انتم، انتم کا معنی ہے آپ سب۔ آپ سب کا مطلب جیسے انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں all of you۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انا۔ انا، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں I۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آخری لفظ چھٹا، نحن۔ نحن، جس کا معنی ہے ہم، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وی۔ سنگولر، پلورل، سنگولر، یہ سنگولر ہے یہ پلورل آ گیا، یہ سنگولر ہے یہ پلورل آ گیا۔ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن، اسے آپ گردان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے پریکٹس کیسے کرنا ہے اور یاد کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے ٹی پی آئی، جس کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اب ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پانچوں سینسز کا استعمال کرنا ہے، یعنی پورے وجود کا استعمال کرنا ہے، اپنے ناک کا، اپنے کان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کیا کہتے ہیں دیکھنے کی سینس، سننے کی سینس اور بولنے کی سینس کا استعمال کرنا ہے۔ اب وہ کیا ہے ہمارے پاس جی؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں، کانوں سے سننا ہے، منہ سے بولنا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دل و دماغ سے شوق سے کرنا ہے۔ اب یہ ہم ان الفاظ کی ٹی پی آئی سے کیا تعلق ہے؟ ان الفاظ کی ٹی پی آئی آپ نے یعنی پریکٹس کرنی ہے۔ اور پریکٹس آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ورڈ ہے ہمارے پاس ہوا۔ ہوا کہ آپ ٹی پی آئی ایسے کریں گے کہ آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ لینا ہے، رائٹ ہینڈ اٹھانا ہے آپ نے، رائٹ ہینڈ کو آپ نے اپنے رائٹ، مطلب اپنے رائٹ طرف
बिल्कुल सीधा कर लेना है अपने बाजू को, राइट बाजू को अपने राइट तरफ बिल्कुल सीधा करके आपने, जैसे सपोज ये आप, मतलब ये एक इंसान है, तो आप ये देखें तो ये इसका लेफ्ट बनता है और ये इसका राइट बनता है। तो इस तरफ आपने बिल्कुल बाजू सीधा करके, ठीक है, अपनी पांचों उंगलियों में से जो शहादत की उंगली है, ठीक है, वो खोल के बाकी सारी उंगलियां आपने अपनी बंद कर लेनी है, ठीक है। उसको आपने बंद करके अपने दाहिने हाथ से शहादत की उंगली निकाल के अपनी दाहिनी तरफ, राइट तरफ आपने इशारा करना। हुआ का जैसे वो आप बंदा आपके राइट साइड पे बैठा है, लेकिन यहाँ पे ये गायब का सीधा है, वो शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है असल में, वो किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्ड पर्सन है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन टीपीआई के लिए, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आपने हुआ को इसी तरह यूज करना है कि आपने अपने दाहिने बाजू को बिल्कुल सीधा करके दाहिनी तरफ इशारा करना है, और अपनी शहादत की उंगली खोलते हुए इशारा करना है दाहिनी तरफ, वो बोलना है हुआ। इसी तरह जब आप होम की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल दाहिनी तरफ ही करना है वही चीज, लेकिन अपने आप एक उंगली के बजाय आपने अपनी पांचों फिंगर्स ओपन कर लेनी है, फाइव फिंगर्स, सॉरी फोर फिंगर्स को ओपन करना है, फाइव को नहीं करना, फोर फिंगर्स को ओपन करना है आपने, और उसकी तरफ इशारा करना है कि वो ज्यादा की बात हो रही है, वो सब ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल है, तो आपने अपने फोर फिंगर से अपने राइट तरफ इशारा करना है, हुम, हुआ हुम। उसके बाद अंता, अंता के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी नाक की सीध में बिल्कुल इशारा करना है, ठीक है। सपोज ये आप जो है मौजूद हैं, हम ये इसको तिरछा करके बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये तिरछा करके बनाया है और आपके सामने कोई दूसरा शख्स इसी तरह मौजूद है। आपने अपने ये वाला हाथ का इशारा उसकी डायरेक्शन में करना है, अपने नाक की सीध में, या आपकी नाक की सीध में बिल्कुल आपका शख्स मौजूद है, और आपने इसकी तरफ इशारा करना है अंता के लिए, अंता के लिए आप इस तरह इशारा करेंगे, ठीक है। तो ये है, आपने जब किसी सामने वाले शख्स को बुलाना हो तब आप अंता के लिए इशारा करेंगे, अंता आप, ठीक है। इसी तरह अंतुम के लिए, अब यहाँ पे हमारे पास अंता के लिए आपने एक शहादत की उंगली से इशारा करना था, लेकिन अंतुम के लिए फिर आपने फोर फिंगर्स इस्तेमाल करनी है और फोर फिंगर से इशारा करना है अंतुम, ठीक है। वहां पर ढेर सारे लोग मौजूद होंगे, एक के बजाय तीन चार पांच लोग मौजूद होंगे, आप उन्हें सारों को अपने चार फिंगर से इशारा कर रहे होंगे अंतुम। उसके बाद है अना, अना को आपने, आपको पता है कि मैं, हम अपनी तरफ इशारा करते हैं, तो आपने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहना है अना यानी मैं। उसी तरह नहनु आपने अपनी ही तरफ इशारा करना है, लेकिन यहाँ अना में आप सिर्फ एक फिंगर इस्तेमाल कर रहे थे, शहादत की उंगली, लेकिन यहाँ पे आप अपने चारों फिंगर यूज करेंगे अपनी तरफ इशारा करने के लिए कि आप, ज्यादा सारे लोगों की बात हो रही है। तो नहनु, ये पूरी आपकी गर्दान है, इसको आपने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। हुआ, हम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये 6 अल्फाज हैं, इसको आपने टीपीआई से प्रैक्टिस करना है। घर में आपके जो भी मौजूद हैं, बड़े छोटे बच्चे, बहन भाई, जो भी मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आपको ये बेहतरीन हो जाएगा, जब आपकी ये जुबान पे चढ़ जाएगा तो आपको कुरान में भी मिलने लग जाएंगे ये अल्फाज। और उसके अलावा आपका होम असाइनमेंट ये होगा कि आपने जो है इसके अल्फाज जो है कुरान मजीद में ढूंढने हैं, कुरान मजीद में ढूंढने के बाद आपने इनको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है या फिर पेंसिल से अंडरलाइन करना है कि ये मैंने अल्फाज पढ़े, ठीक है। स्टार्ट से करते चले जाएंगे, ये हुआ है, ये हुम है, ये अंता है, अंतुम है, अना नहनु, जितने अल्फाज आपको मिले, मजा आएगा ये ढूंढने में आपको। उनको ढूंढने के बाद आपने हाईलाइट करना है, फिर जब आप कुरान पढ़ने लगेंगे तो आपको ये अल्फाज मिलेंगे, तो आपको पता लगने लग जाएगा कि हुआ का मतलब था वो, उम का मतलब वो सब, अना का मतलब आप या मैं, अंतुम का मतलब आप सब या आ, अंतुम का मतलब आप सब, अना का मतलब मैं, और नहनु का मतलब हम सब। ये था हमारा आज का लेसन, इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें, अपने होम असाइनमेंट कंप्लीट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मजीद इसको कवर करेंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।